रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। ओके, सो जस्ट कंफर्म मी कि नॉइज़ तो नहीं है बैकग्राउंड से। अच्छा ठीक है, और मेरी वॉइस भी क्लियर होगी। ओके फाइन, ठीक है, वॉइस क्लियर है ना? फिर ओके, तो ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना को लाइव कर लेते हैं। ओके, ओके, सो अब हम इसमें अपनी थोड़ी थोड़ी CSS लगाएंगे। काम करते हैं, हम स्प्लिट कर लेते हैं। ओके, like this. Okay, you're clear, but try to be a little louder. Okay. ओके फाइन, तो ठीक है। अब हमने जो इतना HTML का कोड किया, ओके, अब विल डू CSS ऑन दीज ओनली, फाइन, लाइक इनकी विड्थ एंड हाइट एंड ऑल। ओके, सो लेट्स मूव दिस। ओके फाइन, तो एज आई टोल्ड इन द लास्ट क्लास कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ CSS. ओके, I mean three ways to use CSS. First one is inline CSS, sorry, internal CSS. Okay, that that we do like by simply using this style tag. Okay, the second method was an external CSS. Okay, external CSS refers to when we use this style tag, yeah, or we replace the style tag with some external file. Okay, like a file named style.css. Okay, or whatever. So and then we put all of our CSS code in that file only. Okay, so either we can use that is we refer that to as external CSS. Okay, and the third type or the third method to use CSS is inline CSS. Okay, and how do we use that? We just use style attribute. Okay, in HTML every element or every tag has an attribute style. Okay, so we just write style equals to, and in this string we pass all the CSS stylings. Okay, so these were the three methods or ways to use CSS. Okay, we'll first start with the basic अपना internal CSS. Okay, that is using this style tag. Okay, you can put this style tag anywhere, like in head file or in body or out of both. Okay, or anywhere in the file. Okay, that doesn't matter. Okay, you just need to use proper selectors. Okay, and I told in the last class what are selectors. Selectors are basically, as the name suggests, um, it enables us to select the element that we want to style. Okay, like I want to style this heading 1. Okay, so how will I select this heading 1 in my CSS? So either I can use this element. Okay, so either I can तो either I can directly use this h1 tag. ठीक है, it will design every h1 tag in my website. ठीक है, according to this whatever designing we do here. Okay, second method is कि we can pass an ID to this or a class to this. Okay, like ID some heading. Remember ID cannot have, sorry, remember ID cannot have any space between them. Okay, so like you can use hyphen or underscore or camel case like this. Okay, but you cannot have any spaces between them. Fine, and similar is the case with class also. Okay, like you can name this some heading. Okay, you can put some space like this in class. Okay, but what does this will mean is that we have given heading 1 two classes. Okay, first one is sum and the second one is heading. So suppose I want to design dot sum. Okay,
I mean some class, and suppose this heading also has the same class. Okay, some. Okay, so see, if I do some styling here, that is color red. Okay, so then both the sum classes will be this also has the sum class and this also has the sum class. Okay, so both will get designed as color red. Okay, but I want to specially design this one. Okay, and I'll with keeping some style also. Okay, so what will I do? I will pass a second class name to this heading one. Okay, with a space. Okay, as a separator, and we'll do the styling with that. So like heading. Okay, and color. Fine. So now this will be okay. So just see, matlab class names are divided or separated by spaces between them. Okay, but space is not allowed in ID. Okay, so that's the thing. Now, so these were the selectors. Okay, this and hashtag. Hashtag I told it. Hashtag is used for IDs, for referring to IDs. See, like second number, text 24, some heading. Okay, these three are the IDs. Like this. Okay. So let's remove all this. Now coming to the CSS, I mean syntax wise. Okay. Let's take text, or not even that. I'll give it an ID. This p tag an ID. First text. Okay, and we'll refer to it as first text. Why did I use hashtag? Because this is an ID. First text is ID given to some element, and I want to design that element. Okay, so I used hashtag and the ID name. Okay, and now the color. See, now here in these curly braces. Okay, we have to use key value pairs. Okay, by which the element gets designed. Fine. So like you can use control space. Okay, this will give you all the suggestions. Okay, one of them was yes, one of them was the color that I used yesterday also and today also. Okay, so what does this do? It simply changes the text color. Okay, as you can see here. Some other properties, like as you can see, font size. Okay, font size, and remember that um, any measurement in CSS. Okay, or you can say in web development. Okay, is done with the help of pixels. I mean, we can also use centimeters here. Okay, like 10 centimeter. Okay, but this is not the preferred method to style it. Okay, because see, we don't need to, I mean, we'll need a scale to measure कि हाँ इतना 10 सेंटीमीटर है. फाइन, ये जो B लिखा है ये पूरा 10 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी. ठीक है, and that won't be a good way to style our website, right? So what we'll do, instead of centimeter, there are many measurement units in the CSS. Okay, but in major cases we use pixels. Okay, px. If we put 10 pixels, see, this is the size of 10 pixels. Are you seeing? It's very small. The normal sizing is 16 pixel. Okay, that is the normal जो text का size होता है. Okay, slightly greater than that, 18 pixel, 20 pixel, 24 pixel. Okay, so this is the font size. Fine, font size property in CSS. Okay, सो बेसिकली मतलब इसी टाइप से हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होंगी. ठीक है, जो हम दे सकते हैं किसी एलिमेंट की स्टाइलिंग. ठीक है, लाइक आफ्टर फॉन्ट साइज वी हैव फॉन्ट स्टाइल. ओके, फॉन्ट स्टाइल लाइक वी कैन हैव ईदर इटैलिक और नॉर्मल और ऑब्लिक. ओके, ऑब्लिक मीन्स आई गेस इटैलिक इज सेम.
yes, italic is same, and we can also have a bold. Okay, keep this bold. I guess for for making a text bold, we have another property also, like font weight. Okay, what does this do? It we can pass values from ranging from 0 sorry from 100 to 900. Okay, what does this do? It thickens the text, take a text stroke to the given value. Okay, the default is, I guess, 500. Yes, 500 is the default. Then we can go on to 6, 7, 8 or 9. 9 being the boldest. Okay, and 100 being the lightest. ठीक है, I guess अच्छा मतलब 100, wait, I'll put 500. yes, तो ओके, तो 500 से नीचे अवेलेबल नहीं है. ओके, okay, no problem. So this font weight although ranges between 100 to 900, but it depends upon the font being used. Okay, I guess this font is this font is sans serif. I mean the name of the font, okay, is sans. ठीक है, SANS serif. So this font might does not support font weights below 500. Okay, so that's not a problem. मतलब it depends on the font families. Okay, or font. ठीक है, like Times New Roman, or you might have heard of them. Okay, so this was the font weight. Okay, let's keep it as 700. Just slightly below. Okay, so this is the third property. Then we can see background color. Okay, we have a background color of yellow. Yes, this has a background yellow. Okay, and now as you can see, this not just the ABCD is being the background, right? I mean the background is being from here till the end of the screen, and that is because of P tag. Okay, you remember that P tag was a block tag or block element, right? जैसे कि span tag जो था ये हमारा inline element था, right? But P tag एक block element था, and what did block element do is that कि block element पूरी screen की width ले लेता है, right? चाहे उसके अंदर का content कितना भी हो, but it takes up the whole width of the screen, right? So that's why जो background color है, it is being stretched to end of the not the screen but end of the viewport. Okay, viewport or browser. So this is the background color. Okay, similarly we can give it as we can अच्छा एक बार हम किसी इमेज को भी ले लेते हैं साइमल्टेनियसली. इस इमेज को मैं यहाँ से हटा के टेक्स्ट के नीचे पुट कर देते हैं. ओके, इसको भी and let's give this also an class name. Okay, okay, तो ठीक है. And as we have given this a class, तो we'll use dot image. Okay, तो अब हम जो भी स्टाइलिंग होगी वो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पे देख रहे होंगे. वन इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट, अनदर वन इज़ अन इनलाइन एलिमेंट. ओके, दिस इज इमेज. तो ओके, तो वी हैव डन दी कलरिंग. ओके, बैकग्राउंड कलरिंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट. ओके, फाइन. नाउ लेट्स गेट टू ओके बेसिक प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे हमारे पास विड्थ, वी ऑल्सो हैव विड्थ. ओके, लाइक 100 पिक्सल और 200 पिक्सल. Similar we have अच्छा
you have to put semicolon at the every end of line, okay, in CSS. Width, height. See, these are very simple properties, like as the name suggests, width will define the width of the image, right? Height will define the height of the image. As we say there, see, next thing. Okay. Similarly, if I put more height to this, it will stretch up. Okay. Now, like for this thing to be fixed, we have several methods. Okay. We can prevent this stretching or whatever. Okay. We'll see that how to do that. Okay. First, we have to do some basic things like borders and outline and margins, etc. Okay. Fine. So let's get to first this background thing. Okay. See, in background we have 2 to 3 types of different background. Okay. Like this was the background color, basic color. Okay. We have a background image also. Background image. Okay. And how do we put that image? We use URL method. Okay. URL, and in bracket we have to pass the URL of any image. Okay. So like image. Actually, we also already had image. Right. Logo.wp. In strings, videos. Oh, sorry. As you can see, although the height is smaller, I can add some. Wait, someone sent in a message. Oh. Okay. So you can see, the background of this thing is filled with image, right? मतलब पूरी इमेज तो नहीं आ सकती, बट फील आ गई होगी, राइट? तो या this is the thing. We have two different, like we can do either color or we can do either background image. Okay. We can also do some gradients. Okay. Background color, like linear gradient. Okay. Image background. Okay. And for a gradient to work, this is not the right thing. We have to pass red. Okay. Oops. I guess. Oh. अच्छा, ओके गुड. एक बार हम पहले बैकग्राउंड ओपेसिटी देख लेते हैं, देन वी मूव ऑन टू दिस. अगर हम ओपेसिटी विल रेंज फ्रॉम 0 to 1. ओके, 1 being the least transparent, ठीक है, और the most opaque, ठीक है, and 0 will be the transparent, ठीक है. So like we can, if we put a 0, then this will disappear. If we put 1, it will appear, and we can put some middle number like 0.45. This will slightly be what you can say, faded a bit, right? So yeah, this is the thing. Okay, and next thing.
guess we should pass some degree here. Actually, 90 degree. That remove that color. Still not working. Gradient, gradient. Achha, okay, wait. We don't need to pass this color thing. The background, the linear gradient is not a color. Okay. So yeah, see, as you can see, the gradient has been okay. Now I'll break down this. Sorry. Now I'll break down this for you. Okay. I mean, what does this mean? 90 degree refers to this angle. Okay, like left to right. If we put this 45 degree, then this will be something like slant. Okay, or 145. Or this doesn't work out. And plus 1. This is 180. Okay, that was 90. And this I was think so, minus 45. okay. So see, 0 degree starts from here, and then we'll go until 90 degree. Okay, like I mean left to right. Fine. So, acha, text is disappeared. We'll change the color. Purple. Okay, great. Okay, so this is the linear gradient. Okay. Now I'll remove. I'll keep these conventions. Okay. Okay, fine. Now coming to borders. Okay. There is some border property. See, every property I'm talking about is given to most like 90% of the elements in HTML. Okay. So you just need to remember these and apply to anything. Like we can also apply these things to this image or this video or this embedded or okay, or anything. Okay. But just use some logical things like background will not work in image, right? Because image has, just imagine them as a block of elements, right? Like boxes of elements. So image has covered his full block, okay, from its content only. ABCD text didn't cover all the spaces, right? It covered the space from left to rightmost point on the screen, but it didn't. But its content was not enough. Okay, so that's why we are the background screen, the background gradient is visible, right? But in the image case, we won't be visible. Anyways, we can apply that to this, but this makes not no sense. Okay, so fine. Now coming next to like more properties like borders. Okay, we have borders. Border. Okay. We have to pass three things in order to like create any border. Okay. We have border width. Okay. Like how thick we want the border. Border, I guess you understood, right? The outlining of any element. Okay. So border width, I want the border width to be 2 pixels. Okay. Next the border color. Okay. I want the border color black. And next the third last border style. Okay. Now we have like different types of border styles. In majority, you will use 2 to 3 only. Like there is a dashed one. Okay, as the name suggests, dashed one will be like dash border. Okay, dotted will be dotted borders. Okay, then comes the solid one. Okay, these three are the majority. I mean, the mostly used ones. Okay, if we put solid and I'll say show you. See, this is the border. Like 2 pixels is the width, black and solid. Okay, if I use the dashed one, this is the dashed one, right? And this is the dotted one. Okay, I guess I am forgetting about the group one. Group, Achha, groove, I guess.
ओके ग्रूव आई गेस थोड़ा 3D इफेक्ट देने के लिए होता है, मैं ये करके दिखाता हूँ। 20 पिक्सल्स, यस 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 दिस, लाइक ऐसा थोड़ा, आई मीन ये 3D इफेक्ट देने की कोशिश किया है, बट ठीक है, मतलब इनके लेवल पे यही अच्छा है, ठीक है। तो यही है, इसको 10 पिक्सल कर दिया, 5 दिया, ओके, बट आई गेस फॉर अस solid was fine, okay, yes, okay, fine. So this is the border thing, and after all these things there is a one line border statement. We can simply write border, okay, colon, and we'll pass all these three things in one go: 2 pixels, solid, and line, fine. And this will do the same work as all these three, okay. And the order doesn't matter, like you can pass 2 pixels after this, black before this, okay, that won't matter, okay. So yes, okay, fine. Now border is done. Next we can come on to, like, borders are done, okay. Box, like, outline, okay, okay, fine, fine, ठीक है। तो बिफोर मूविंग अहेड, जस्ट एक छोटी सी चीज़, जैसा मैंने HTML में बताया था, लाइक देर आर सम थिंग्स लाइक कमेंट्स, राइट, मतलब ऐसा एंगुलर ब्रैकेट्स एंड ये डैश डैश, ओके, एंड स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके और इसके बीच में हम जो भी लिखते हैं ये हमारे प्रोग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, राइट, और इधर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, लाइक इफ़ यू ओपन दिस कोड 1 month लेटर और 2 months लेटर, ठीक है, तो देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ रिटन कोड, राइट. तो फॉर दैट रीज़न वी should use comments, right, and in the processing of or in the execution of the code, right, or in the rendering of our website, the all the comments are ignored, okay. So this does not mean anything on the, like, to the browsers, okay. तो ये प्योर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ठीक है, फाइन. तो ऐसे ही कमेंट्स हमारे CSS में भी होते हैं, मतलब ऐसे कमेंट्स हर लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है, जस्ट उनको यूज़ करने का मेथड अलग होता है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो HTML में हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं, लाइक दोनों तरफ एंगुलर ब्रैकेट्स, देन दोनों तरफ डैश डैश, एंड स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, एंड बीच में कुछ भी लिखो, इमेज एंड वॉटेवर, ठीक है. सिमिलरली CSS में भी होता है. CSS में क्या है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, स्लैश स्टार एंड वॉटेवर, कुछ भी यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है. यहाँ लिख देते हैं वी borders, okay. So slash star, then star slash, okay, मतलब forward slash, fine. तो this will do the work for comments, right. मतलब ये चीज़ CSS में इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, बट जस्ट दिस इज़ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट. अब सी, मतलब ये जो भी कोड था, आई कमेंटेड ऑल दीज 3 लाइन्स जस्ट की, ताकि व्हेन आई पुश दिस कोड एंड यू पुल द कोड्स, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, फाइन. तो दिस इज़ द कमेंट, एंड नाउ इफ यू गॉट दिस, वी कैन मूव ऑन टू, like, a basic understanding of this box, I can say box model, right. उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट लाना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दो, इतना जो कर बताया CSS पार्ट, ये क्लियर है या नहीं. कोई भी डाउट है तो वो अभी एक सेकेंड चैट में पूछ लो, ओके. नो डाउट, ऑल क्लियर, ओके, कूल. अच्छा, बाकी बता दो, क्लियर साक्षी, विश्वा नो डाउट, समित नो डाउट, नो डाउट, मतलब ठीक है, सब क्लियर है, ओके ओके, समित तक किसी को डाउट नहीं है. एंड who is left? ओके ओके ओके, जय आपको क्लियर है?
You didn't say anything, and I guess Sakshi. Yes, sir, clear. Okay, okay, cool. Clear. अच्छा ठीक है, Sakshi message. Some. अच्छा, we have two Sakshi in our group. Okay, Sakshi Chaudhary and Patel. And Sakshi Chaudhary message. Okay. Yes, sir. Okay, okay, clear है, fine, ठीक है. And Poonam Queen, like this is your first class or या फिर पहले भी ले रखी क्लास? ठीक है अनुराग, नो डाउट. ओके, मतलब पूनम अगर आप सुन पा रहे हो तो बताना कि इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास, मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दूँगा, मतलब क्या चल रहा है. और अदरवाइज़ अगर समझ आ रहा है तो फिर लिख देना चैट में, मतलब क्लियर है. ओके. ओके, तो आई एम अज्यूमिंग सबको यहाँ तक का पार्ट क्लियर है. ठीक है, इतना पार्ट हमारा CSS का था. इसमें मैंने कुछ कुछ लाइन्स हटा दिया है बस. बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है. इमेज में याद रखना URL के अंदर हम स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं. ठीक है, ईदर दिस कैन बी लोकल इमेज, तो मैंने डायरेक्टली लोगो डॉट वेब पी लिख दिया, और इट कैन ऑल्सो बी अ URL. ठीक है, एंड रिमोट इमेज URL. ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो पास दैट. तो ठीक है, अब हम CSS पे थोड़ा सा बॉक्स मॉडल पे बढ़ते हैं. ठीक है, लाइक व्हाट इज़ बॉक्स मॉडल एंड एक्सेट्रा. ठीक है, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमारा जो भी HTML की चीज़ें होती हैं कैसे, और थोड़ा सा बस डिज़ाइन का आइडिया दें. फाइन. अगर आपके ब्राउज़र्स खुले हों तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखना. फाइन, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इस एलिमेंट सेक्शन के अंदर. ओके, अब नाउ एज यू कैन सी, मतलब यहाँ पे देखो HTML का कोड दिखा रहा है हमें. अब सी, दिस इज़ द बॉडी. ओके, बॉडी के अंदर सबसे पहला हमारा एक p टैग था, राइट, फर्स्ट टेक्स्ट वाला. एंड इसको भी हम एक्सपैंड करेंगे तो इसके अंदर हमने ABCD लिखा हुआ है, राइट. तो एंड इसके आगे दो ब्रेक्स थे. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट नहीं, जस्ट होवरिंग. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कुछ अलग सा कलर दिखा रहा है. ओके, एज यू कैन सी, मतलब एक सेकेंड इसके ऊपर, राइट. तो नाउ व्हाट डज दिस मीन. ठीक है, क्लिक करें एक बार एंड नीचे जाके देखें तो सी, ये हमारा एक बॉक्स मॉडल दिखाता है. ठीक है, कि लाइक ये जो p टैग जो हमने डाला है, ठीक है, ये p टैग ये है, मतलब सबसे अंदर वाला जो बॉक्स दिखा रहा है ये हमारा एलिमेंट है. ओके, दिस इज़ द बॉक्स, दिस इज़ द p टैग. ओके, 990 अभी इसका विड्थ दिखा रहा है, 54 इसका जो है हाइट दिखा रहा है इन पिक्सल्स. ओके, विड्थ जो है वो भी मतलब वेरी करता रहेगा इसके हिसाब से, राइट. 1172 हो गया. अच्छा वेट, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है. ओके, आई गेस अब ठीक है. ओके, सो दिस इज़ द एलिमेंट. ठीक है, जो हमारा p टैग है, एंड इसके चारों तरफ क्या चीज़ है. सेकेंड इज़ पैडिंग. ठीक है, अभी तीनों बताता हूँ मैं. पैडिंग, देन बॉर्डर एंड देन मार्जिन. ठीक है, सो अब क्या होता है, पैडिंग और मार्जिन दोनों आप गैप समझ सकते हो. ठीक है, एलिमेंट के चारों तरफ का गैप. ठीक है, अगर इसको मैंने कुछ मार्जिन दे दिया, लाइक दो एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ABCD है एक एलिमेंट, ABCD2 है सेकेंड एलिमेंट. इन दोनों मैंने ABCD2 को कुछ मार्जिन दे दिया. ठीक है, एंड व्हाट डज मार्जिन मीन, अगेन एज द नेम सजेस्ट, कुछ गैप. ठीक है, तो ये ABCD टेक्स्ट से थोड़ा सा दूर हो जाएगा. फाइन, अगर मैं दिखाऊँ, इसको हम कुछ अपना, अच्छा ठीक है, इसको क्लास दे दिया हमने. ठीक है, तो दोनों को क्लास दे रखा है, दोनों को ये मार्जिन दे रखा है. या फिर दोनों को क्यों, एक को देते हैं, टेक्स्ट 24 वाली ID को देते हैं.
X24 जो कि हमारा पहला है, इसको हम देते हैं थोड़ा मॉडल 10 पिक्सल। तो इसके चारों तरफ 10 पिक्सल का एक गैप आ जाएगा। सी लेफ्ट साइड से भी बढ़ गया, राइट साइड से भी बढ़ गया, ऊपर नीचे से भी बढ़ा है, बट हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ऊपर नीचे कुछ मतलब नहीं। ठीक है, तो 10 मतलब चारों तरफ से 10 पिक्सल का मार्जिन आ गया इस एलिमेंट के पास। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, बजाय उसके मैं पैडिंग दे दूँ इसको 10 पिक्सल। ओके, सेव, स्टिल इट विल काइंड ऑफ डू द सेम वर्क। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर आपने इसको सिलेक्ट किया ABCD को, तो सी यहाँ पर जो पैडिंग है ये 10 पिक्सल्स दिखा रहा है, राइट। अभी हमने इसको यहाँ पे अगर हम मार्जिन कर दें, इसको कमेंट एंड उसको मार्जिन, सी अब मार्जिन 10 पिक्सल दिख रहा है। ठीक है, दोनों में गैपिंग ही मिल रही है, बट डिफरेंस क्या है पैडिंग और मार्जिन में। ठीक है, बॉर्डर तो मतलब ठीक है, बॉर्डर तो अभी हमने देख लिया है ना, अब बॉर्डर मैं अभी दोबारा बता भी दूँगा यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, ना व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। द डिफरेंस इज़ कि हम एक बार इसको बैकग्राउंड कलर देके देखते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको हम ब्लू, और कलर दे देते हैं वाइट। ठीक है, जो कि हमारा टेक्स्ट कलर होता है। रिमेंबर टू पुट दिस सेमीकोलन। तो सी इसके बैकग्राउंड में ब्लू कलर आ गया, राइट। जो भी टेक्स्ट था वो वाइट है, और क्योंकि इसके चारों तरफ गैप दे रखा है हमने, तो ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इतना ही एलिमेंट था ये। ठीक है, ABCD ही इज़ द एलिमेंट, और इसके चारों तरफ हमारा मार्जिन हो गया। बट व्हाट विल पैडिंग डू इज़ कि गैपिंग देगा वो, बट एलिमेंट के अंदर से गैपिंग देगा। ठीक है, मतलब मैंने मार्जिन 10 पिक्सल हटाया, पैडिंग 10 पिक्सल दे दी इसको, सेव किया। अब सी जो बैकग्राउंड कलर है वो बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब एलिमेंट ही बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब एलिमेंट के अंदर से इसने 10 पिक्सल बढ़ाया है। ठीक है, मार्जिन में क्या कर रहा था, एलिमेंट के चारों तरफ 10 पिक्सल का गैप कर रहा था, अब पैडिंग में इसने अंदर से ही 10 पिक्सल का गैप बढ़ा दिया। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली ये कह सकते हो कि एलिमेंट खाली इतना नहीं है, पैडिंग तक एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसमें कि कंटेंट जो होता है एलिमेंट का वो ये होता है, कंटेंट के चारों तरफ का गैप ये होता है, और एलिमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। एलिमेंट के बाद आता है उसका बॉर्डर। ठीक है, जो कि कभी कभार 1 पिक्सल, या जैसे इस केस में 2 पिक्सल का बॉर्डर होता है, राइट। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो सी ये 2 पिक्सल का बॉर्डर दिखा रहा है। पैडिंग कुछ भी नहीं है, बट मार्जिन है 24। ठीक है, ऊपर मार्जिन 24 दिखा रहे हैं, राइट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है, हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा कुछ जो है बॉक्स मॉडल काम करता है। ठीक है, और इसी में कुछ हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये, और ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि हमारा पी टैग। ठीक है, जो पूरा ही इसमें विड्थ दे रखा है। ठीक है, तो अब अगर ये चीज़ें समझ आ गई है तो बस यही है मार्जिन पैडिंग वगैरह। ठीक है, कि हमने किसी को मार्जिन दे दिया, सपोज़ मैं मतलब बॉक्स मॉडल अभी वैसे वो पूरा नहीं हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक जैसे इनलाइन चीज़ें जो मैंने बताई, अभी उसमें भी कुछ आएगा, तो कोई नहीं, उसके लिए वेट करते हैं अभी हम मार्जिन एंड पैडिंग देखते हैं। ठीक है, मार्जिन पैडिंग हो गया। अब सपोज we can also do the designing with the button also. Let's put some button, put a button here. So you can let's put this BTN click. Okay, अब सी इस क्लास को भी हम डिज़ाइन करते हैं, डॉट BTN। इसको सपोज़ मैंने मार्जिन दे दिया, या फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं। ओके, एंड देन कलर वाइट, दिस मीन्स फॉन्ट कलर। ओके,
put the font weight to 600. Okay, font size to at least 20 pixels, no, 18 pixels. ओके, अब सी इसका सबसे पहले बॉर्डर बेकार लग रहा है, ठीक है, हम इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, और वी कैन ऑल्सो से बॉर्डर ना, ओके, किसी भी चीज़ को हम नन कर देंगे तो वो हट ही जाएगा। अब सी बॉर्डर हट गया, ओके, सो बॉर्डर इज नन एंड नाउ वी कैन गिव इट सम पैडिंग 10 पिक्सल्स, ओके, 10 पिक्सल, ठीक है, ताकि अंदर से गैप दे, सो दैट कि हाँ सी दिस कलर विल इंक्रीज, ओके, अदरवाइज अगर हमने इसको मार्जिन दिया तो दैट विल नॉट डू आर वर्क, ठीक है, पैडिंग, वी कैन ऑल्सो गिव मार्जिन एंड पैडिंग इन एक्स, लाइक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ओके, सो मैं पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट थोड़ी ज़्यादा दूँगा, 14 पिक्सल लेफ्ट, 14 पिक्सल राइट, डन, सो दिस इज द थिंग नाउ, ओके, ये हमारा एक बटन बन गया, फाइन, तो दिस इज आर मार्जिन एंड पैडिंग एंड दिस, नाउ सिमिलरली, ठीक है, हमारा कलरिंग हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, अच्छा बॉर्डर में एक और चीज़ थी, लाइक बॉर्डर विड्थ होता है, बॉर्डर स्टाइल होता है, बॉर्डर कलर होता है, एक फोर्थ चीज़ होती है बॉर्डर रेडियस, ठीक है, एंड व्हाट डज दिस डू, बॉर्डर को एक रेडियस दे देता है, ठीक है, आई मीन थोड़ा सा, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, कर्व्ड बना देता है, 5 पिक्सल है मतलब 5 पिक्सल से ही कर्व हो जाएगा, ठीक है, हम इसको बढ़ा देंगे 50 पिक्सल कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 500 कर देंगे तो ज़्यादा फ़र्क वैसे नहीं पड़ेगा, बिकॉज कुछ अपर लिमिट आ ही जाती है किसी चीज़ की, ठीक है, इससे ज़्यादा रेडियस होनी चाहिए, ओके, और माइनस दिया तो कोई कुछ नहीं होगा, ओके, तो लेट्स नॉट गिव दिस 500, 7 विल डू, ओके, ठीक है, पैडिंग थोड़ी और दे देता हूँ, दिस विल 12, दिस विल 16, यस, ओके फाइन, तो ये था हमारा बॉर्डर रेडियस, ओके, अब ओके, तो दीज आर दी बेसिक थिंग्स, अब सी एक और चीज़ होती है हमारे पास, स्टार्ट करेंगे, अच्छा ठीक है, बता ही देते हैं, अच्छा जैसे कि मतलब ये मैंने बताया पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट, इसी तरह से हमारा मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम भी है, लाइक मैं इसको मार्जिन लेफ्ट कुछ देना चाहता हूँ, मतलब मुझे इसको इमेज से थोड़ा दूर करना है, तो आई डू टू 20 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट से भी 20 पिक्सल्स, ओके, इसको नीचे से थोड़ा मुझे ऊपर करना है, तो मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल्स, ऐसा इसमें, अब सी मुझे इसको अगर ऊपर करना है, मैंने इसको मार्जिन बॉटम दिया, तो मार्जिन बॉटम में इसने बाकी चीज़ों को नीचे कर दिया राइट, बट मुझे इसको ऊपर करना है, तो मैं इसे कैसे करूँगा, मार्जिन टॉप दे दूँगा इसको माइनस में, राइट, मतलब मैं ऊपर से इसको मार्जिन दूंगा बट माइनस में, ओके, सो -20 पिक्सल, अब से ये ऊपर जाएगा, मोस्ट वाला, एक सेकेंड, मार्जिन टॉप काम नहीं किया, एक सेकेंड,
अच्छा ओके ठीक है। जो नेगेटिव मार्जिन है वो थोड़ा सा आगे करते हैं। पहले एक बार एक चीज़ और सीख लेते हैं, नॉट पोजिशन। आज की क्लास में डिस्प्ले तक मैं बता देता हूँ। डिस्प्ले एक चीज़ होती है, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। डिस्प्ले जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास डिस्प्ले टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि दो तो हमें पता है ऑलरेडी। एक होता है ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक मैंने बताया जो ये पूरी स्क्रीन की विड्थ में देता है। द सेकेंड वन इज़ इनलाइन, ये भी आपको पता होगा। इनलाइन से क्या होता है, वो चीज़ें इनलाइन हो जाती हैं। लाइक सी मैंने बटन को इनलाइन, वैसे बटन ऑलरेडी इनलाइन है, ठीक है, बट ये ए बी सी डी जो है ये इनलाइन नहीं है। तो लेट्स मेक दिस ए बी सी डी इनलाइन। इस ए बी सी डी को हमने क्या दिया था, क्लास टेक्स्ट और आई डी फर्स्ट टेक्स्ट, आई डी फर्स्ट टेक्स्ट। And let's give this a display of inline. Sorry. Semicolon याद रखना। Yes. So see, now at least ये inline हो गया। अब the thing is, इसके बाद वाली चीज़ को भी मुझे inline करना पड़ेगा ताकि ये एक लाइन में आए। अच्छा नहीं, सॉरी, एक हटा देते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी हमारा ये भी अब एक लाइन बाहर है, ठीक है। जो पी टैग था जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, हमने उसको भी एक इनलाइन एलिमेंट बना दिया। ये सब आपको दिख रहे हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, क्योंकि पूरी बिट्स दे रखे हैं उन्हें, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हम सबको एक ही क्लास देके और एक ही क्लास को हम इनलाइन बना देंगे, तो ये सब कुछ हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। फाइन, तो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। ऐसे करके हम डिस्प्ले को मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हम डिस्प्ले देख रहे हैं, तो डिस्प्ले खाली टू टाइप, मतलब दो तरह के नहीं होते हैं। फाइन, आई मीन देर आर नॉट ओनली ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। देर इज़ 2 or 3 टाइप्स ऑफ मोर एलिमेंट्स, लाइक देर इज़ वन ग्रिड लेआउट, ठीक है। देन देर इज़ वन लाइक फ्लेक्स, ठीक है। एंड जब हम थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करेंगे तो इन मोस्ट केसेस लाइक 98% of cases we'll use flex and grid sometimes, okay। only these two will be used throughout the, मतलब ये भी मान सकते हो कि ब्लॉक और इनलाइन तो नेग्लिजिबली कभी यूज़ होगा, ठीक है। फ्लेक्स 90% टाइम्स ऑफ यूज़ होगा एंड लेफ्ट आउट 10% टाइम्स हमारा ग्रिड यूज़ होगा, ठीक है। सो तो अगर ऐसी बात है तो मतलब ऐसा फ्लेक्स व्हाट डज दिस ऑफर्स अस कि मतलब हम इतना इसको यूज़ कर रहे होंगे, राइट। तो सी इसको हम बटन को नहीं करेंगे। अच्छा ओके, वेट एक बार बताना, मैंने डिव एलिमेंट नहीं बताया अभी तक, डिव टैग HTML में DIV टैग, हाँ मैंने नहीं बताया उस पर, एक बार मैं बता देता हूँ, मतलब इतना कुछ इशू नहीं है। डिव टैग इज़ जस्ट अ कंटेनर, ठीक है। मतलब हमें 2-3 चीज़ों को किसी एक जगह में डालना है, तो बस ये डिव टैग बना, ठीक है। डिव मतलब डिवीज़न, ठीक है। तो अब इन तीनों को मैंने इसके अंदर डाल दिया, इस डिव के अंदर। तो अब ये क्या हो गया, एक कंटेनर के अंदर चला गया। तो सपोज़ मुझे स्टाइलिंग करनी है इन तीनों से जो एक बॉक्स बन रहा है उस बॉक्स की पूरे की, ठीक है। लाइक क्लिक मी ABCD एंड ABCD2, इन तीनों की मुझे इन तीनों के बॉक्स की मुझे स्टाइलिंग करनी है, राइट। तो मैंने इसको एक कंटेनर में डाला। अच्छा ये नीचे क्यों चला गया, बिकॉज डिव है, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो हम इसको भी क्लास देंगे, ठीक है, फर्स्ट डिव। अब लेट्स डू द स्टाइलिंग विद फर्स्ट डिव कंटेनर, ओके। अब सी हम इसको भी एक इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं ताकि ये दोबारा से पहले की तरह उधर चला जाए, ओके। बट दिस इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट टू डू, ठीक है। वी वॉन्ट टू टेस्ट द फ्लेक्स, ठीक है। अब फ्लेक्स से क्या होता है, जिस भी डिव को, ठीक है, जिस भी कंटेनर को हम फ्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, आई एम रिपीटिंग, वॉट एवर कंटेनर वी मेक इट्स डिस्प्ले फ्लेक्स, राइट। मतलब some special properties are then being offered by the like the flex box, right। see if we make this div box a flex box, ठीक है,
मतलब हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, तो वी कैन रेफर टू दिस एज अ फ्लेक्स बॉक्स, राइट। अब इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशनिंग करने के लिए वी आर गिवन सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। लाइक एज सून एज आई मेड दिस फर्स्ट div flex box, I can use two special properties: justify content, fine, and just a second, justify content, and the second one is align items. Okay, align items, fine. So first of sorry, and before all these there is one more, flex direction. Okay, so see, these three properties, special properties are offered when we make any divs display a flex. Okay, और नॉट div मतलब हम किसी का भी flex display बना सकते हैं, ठीक है। flex से क्या होता है, flex की फुल फॉर्म है flexible display, ठीक है, मतलब फुल्ली flexible display है ये, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है इसको मैंने एक फ्लेक्स बना दिया, मतलब अभी एक flexible display बन गया, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने अब इसको फ्लेक्स बना लिया, ठीक है, फ्लेक्स का डायरेक्शन जो है हम दो तरह से कर सकते हैं, इधर रो और इधर कॉलम, ठीक है। और ये कॉलम रिवर्स एंड रो रिवर्स इज जस्ट द रिवर्सल ऑफ बोथ ऑफ, ठीक है, इन दी अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अगर इफ़ आई डिड दिस अ कॉलम, तो सी ये चीज़ें कॉलम में हो गई, राइट। एज यू कैन सी, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग एंड लास्ट थिंग, ठीक है। इसने विड्थ पूरी ले ली है बिकॉज अगेन मैंने बताया फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, वो पूरा मतलब स्ट्रेच वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो हम उसको मतलब अभी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी, मतलब इस div के द कंटेंट ऑफ दिस div will become aligned in column, or you can say in vertical direction, right? This is the first thing. We can give the direction a column or row, ठीक है। So for now we can put this a row, ठीक है। Second thing, justify content, ठीक है। How we want to justify the content, ठीक है। And what do I mean by justifying is that कि मतलब how do I want to place the contents, ठीक है। Like we can put some spaces between them, ठीक है। First of all, make the width, we'll make width 100 view width, okay। Okay, I didn't tell you VW and VH, right? Like just like the pixel, centimeters, EMs, REMs, we have VW and VH, okay। So like when we use VW means view width, ठीक है। And as I put this and as I write this 100 view width, this means कि 100% of the view width, ठीक है, मतलब 100% of the screen, ठीक है। So and similar case is with the 100 VH, like 100% of the view height, I mean the screen, okay। So now we have made the width 100 view width, okay। Now we can like change the justify content. We have several options, ठीक है, like center. If you use center, all the elements will become center. How do I do that? Okay. Yes, now it should be visible. Okay, fine. So this is the center, like I put the content in the center, right? Then there is some other option, space between, ठीक है। Space between, what will this do? It will put the spaces between all the contents, right? So click me will shift to the leftmost, ABCD2 will shift to the rightmost, see, okay। Then there is space around, okay, then the spaces will be around them, okay। And then there is a space evenly, okay। Space evenly means same gap, the same gap that is between the elements will be between the edges of the screen and the elements, right? I mean all the four spaces will be same, right? This is the space between, and I guess this is few, like flex start means in the starting,
Okay, flex end means in the end, right? And yeah, these are the several justify content. Okay, so we'll put it space evenly. Okay, fine. Acha, we'll put the height to fit content. Okay, so now, okay, so as you can see, what the justify content was aligning the elements horizontally, right? Either left, right, center, or space between, or spaced evenly, right? Align items refers to aligning the items vertically. Suppose, um, okay, I'll put the image in the div also. Find this image in the div also. Now let's put this below. Okay, first of all, as you can see, all the elements are stretched to this. Okay, this will occur if we don't specify the how do we need to align the items vertically. Okay, so now see this, the height of the div or the height of the container will become the maximum height, like whatever is the content. According to the content, it will acquire the maximum height. Okay, so now I want to put all the elements in the center. Okay, vertically I'm saying, vertically center. So what we'll do, just align item center. And now you can see this is the container, and in the container, image so okay, it is taking all the height. Okay, all the height of the div, and the other things are being center aligned. Okay, then there is some start. Okay, so it will get in the starting of the container vertically again. Okay, then we can put this at the end. This will put this at the this end, right? Vertically. And see, ये horizontal justify content is horizontal and align items is vertical for flex direction row. ठीक है, if we make this column, then justify content will become vertical and align items will become horizontal. Okay, so these are interchangeable based upon the column and row. Okay, so we'll again make this row, and this is the best display of what you can see, CSS, right? We'll put this center. Okay, so yeah. हाँ, ओके, सो मतलब ठीक है, आज के लिए तो हम थोड़ा इतना ही रखते हैं बिकॉज ज़्यादा हो जाएगा आई गेस. कभी कभार ये फ्लेक्स बॉक्स वाली चीज़ मैनी पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, एक बार यहाँ तक का बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस और हाउ मेनी ऑफ यू हैव डाउट विद दिस. So can you repeat about flex direction and display also? Okay, okay. Just a minute. Okay. Okay. Asa, you didn't understand this justify content and align items also, right? ओके, मैं ओके मतलब एक बार ये बताना कि जस्टिफाई एंड अलाइन समझ आया मुझे. ठीक है, and then I am repeating the flex direction and display. Okay, see this in display, just give me a second. Okay, okay, okay. So display is a property. अच्छा, okay, you understood the align. ठीक है, fine. Yeah, this is the simple, मतलब ये तो vertical alignment और ये horizontal alignment हो गई. ठीक है, तो display means see in CSS we have a display property जिसकी काफ़ी सारी अलग अलग values है, like block. ठीक है, block and inline you have understood like this. ठीक है,
ब्लॉक होता है जो पूरी विड्थ ऑफ स्क्रीन ले लेता है, एंड इनलाइन होता है जो एक लाइन में आ सकता है, ठीक है। देन कम्स दी फ्लेक्स एंड ग्रिड, ठीक है। ग्रिड हम कल देखते हैं, फ्लेक्स मैंने आज बताया। फ्लेक्स एक डिस्प्ले टाइप है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर हम डिव्स को देते हैं, ठीक है, डिव। एंड व्हाट डू डिव मीन्स? डिव मीन डिवीजन, ठीक है। मतलब बेसिकली एक कंटेनर बनाना है हमें, ठीक है। मैं इसको एक्सपांड करता हूँ। एक कंटेनर बनाना है मुझे कुछ एलिमेंट्स का, ठीक है, ताकि मैं उन एलिमेंट्स के एक बॉक्स को डिज़ाइन करूँ, ठीक है, उस कंटेनर को डिज़ाइन करूँ। तो आई मेड अ डिव, okay, container of these elements abcd2 abcd click me and the image, and started designing this first div, okay. Now अब फ्लेक्स से होता क्या है? फ्लेक्स से हमें, फ्लेक्स मीन्स फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, ठीक है। फ्लेक्स गिव्स अस टू मैनी लाइक फीचर्स, ठीक है, जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन। व्हाट डज दिस डू? डिव के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, लाइक फर्स्ट एलिमेंट इज इमेज, सेकेंड एलिमेंट इज बटन, देन स्पैन, देन अनदर स्पैन, ठीक है। इन तीनों, सॉरी इन चारों, इमेज, बटन, स्पैन, स्पैन, इन चारों एलिमेंट्स को डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें स्प्रेड करना है, राइट, उसको डिफाइन करते हैं हम फ्लेक्स डायरेक्शन से, ठीक है। मतलब एक बार हमने किसी डिव को या किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, राइट, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे उसको अच्छा जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक कॉल है। या सो इसके उस सॉरी जो भी एलिमेंट है उसके अंदर के जो जितने भी कंटेंट्स हैं, ठीक है, उनको किस डायरेक्शन में रखना है। तो सी अभी यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। व्हाट इज़ दिस डूइंग? इस कंटेनर के अंदर जो मैंने बताया था अभी, इमेज है, देन एक बटन है, देन एक स्पैन है, देन स्पैन 2 है, ठीक है। इसको हमने एक रो में कर दिया, लाइक, और रो का क्या मतलब, रो का मतलब क्या होता है बेसिकली? हॉरिजॉन्टल ना, एंड कॉलम मतलब होता है वर्टिकल, राइट। तो अभी रो है, तो इसलिए ये एक लाइन में हो गए इसके कंटेनर के अंदर के सारे एलिमेंट्स। इफ़ वी मेक दिस कॉलम, देन ये वर्टिकली हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये, एंड देन इसके अंदर इस बटन एंड ऑल, ठीक है, ओके। एंड सिमिलर इज विद रो। तो अब रो में क्या है? रो में अलाइन, मैंने अलाइन आइटम सेंटर किया हुआ है, तो सारे आइटम्स आर वर्टिकली अलाइन सेंटर, ओके। एंड जस्टिफाई भी मैंने स्पेस इवनली किया हुआ है, सो ऑल द स्पेसेस आर इवनली, आई मीन सेम, ठीक है। अगर मैंने इसको कॉलम कर दिया फ्लेक्स डायरेक्शन को, तो नाउ द थिंग्स आर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, इन द कॉलम डायरेक्शन। एंड सी, जो जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स होते हैं, इनके रोल स्विच हो जाते हैं फिर, बिकॉज कॉलम कर दिया हमने, ठीक है। तो ऑल दो स्विच नहीं होते हैं, ठीक है, बट अगर मतलब फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पज हम सेइंग कि स्विच हो जाते हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है? इनके स्पेसेस के बीच में देखता है, एंड अलाइन आइटम्स अगेन वर्ट हॉरिजॉन्टली देखता है, राइट। मतलब वैसे हमने फ्लेक्स का डायरेक्शन ही वर्टिकल कर दिया, राइट। तो फ्लेक्स के डायरेक्शन के लिए वर्टिकल तो अभी भी ये हुआ, ओके, बट ठीक है, मतलब मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा इसको। ये लोग स्विच कर देते हैं अपना, ठीक है, अपने जो रोल्स होते हैं, एंड अलाइन आइटम सेंटर से क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है, ठीक है। सी, इसको मैंने एंड कर दिया, तो ये सब इस एंड में चलेगा, राइट। मतलब अब ये हॉरिजॉन्टल का काम अब ये करेगा। इसको मैंने सेंटर किया तो ये सेंटर में थे, इसको मैंने स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट में थे, फाइन। तो लेट्स पुट दिस सेंटर ओनली, एंड यार यही है, ठीक है। सो ओके, सो जस्ट टेल मी, मतलब ये क्लियर हुआ थोड़ा सा या नहीं? अच्छा, ओके, अंडरस्टूड, ग्रेट। एक बार बाकी सब भी बता दो, आर यू क्लियर विद दिस और नॉट? Yes, sir, clear. ओके ओके, जय क्लियर, विश्वा क्लियर, साक्षी क्लियर, अथर ऑलरेडी क्लियर, सब क्लियर, ओके, कूल। हामिद, अनुराग, अनुराग एक सेकंड, हाँ अनुराग, पूनम, साक्षी, ओके पूनम आप भी एक बार बता देना।
एक बार आप, अच्छा ठीक है, संकल्प क्लियर, साक्षी, दोनों साक्षी एंड देव उपराधा, देन वी कैन एंड अप द सेशन। ओके अनुराग क्लियर, वेरी गुड। मैं इसको एटलीस्ट पुश कर देता हूँ ताकि कोड देख लो।